Now, the next topic is after Ohm's law, factors affecting resistance of the conductor. किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है या इलेक्ट्रिक चार्जेस को ले जा रहा है या करंट फ्लो को ले जा रहा है, उसमें जो रेसिस्टेंस आपकी पैदा होती है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर मोस्ट आपका उसको इफेक्टेड करते हैं आपका ना. तो देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेसिस्टेंस. मेरे हिसाब से देयर आर आपका ना दिस इज देयर आर 4 factors. Look at this one. Which affect the resistance of a conductor. तो मैं देयर आर नंबर ऑफ नहीं लिखूंगा, मैं देयर आर 4 फैक्टर्स जो मुझे पता है. फर्स्ट, जो फर्स्ट फैक्टर है अपना देखो कि ना at a temperature, जो टेम्परेचर में now the resistance of a conductor depends on the following factors. अब कौन कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो ना इसमें एक आप कर सकते फास्ट. ये आपका लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के कंडक्टर की लेंथ, वायर की LEN है आपका LEN GTH जरा डॉक्टर्स वाली लैंग्वेज में लिखते हैं. तो ना लेंथ ऑफ ए कंडक्टर हो गया. तो ना देखो दिस इज, तो ये पहली चीज आपके हो गई ना. इफ यानी कि फॉर अ वायर of given material and same cross section area. CA का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, क्रॉस सेक्शन. ना देखो the resistance of a conductor is directly proportional to the length of conductor. यानी कि R is directly proportional to length of conductor. Means ये अपना if length is double, resistance is double. If length is half, रेसिस्टेंस. तो पहला फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर आपका कर रहा है. आप इतना नहीं लपड़ा भी लिखते हैं आपका ना देखो, सीधा लिखेगा डायरेक्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर लिखा. द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सिंपल. आजकल के बच्चे वही चाहते हैं आपका नाम. उसके बाद फॉर ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल एंड गिवन लेंथ, नाउ the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of wire. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी कंडक्टर आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं. तो ना इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/. ये है सर, देखिए इनवर्सली है. तो इनवर्सली का मतलब क्या हो गया सर आपका? फर्स्ट, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, अगर आप कहते हो देखो देन रेसिस्टेंस इज हाफ इनवर्सली. और आपका देखो इफ area of cross section is half, then resistance is twice या डबल आपका ये हो जाएगा. जो यहाँ पे फिर वही A/B/C वाला फॉर्मूला यूज करके AC/B आ जाता है. अब ना तो इसको आप क्या करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें.
एंड यू टेक इट अपना देखो कहाँ जाए इक्वेशन नंबर 2 की R is directly proportional to length of conductor and R is inversely proportional to 1 upon area आपका area of cross section अपना तो ना हाँ margin equation number 1 and equation number 2 R is directly proportional to L upon area this is so now we have to remove this proportional sign from here. So now the R is equal to this is rho L A upon so now this ये जो आप लिख रहे हैं is a constant. ये आपका क्या है constant है आपका नंबर so and it is known as specific, it is known as specific resistance or resistivity. Either you say the specific resistance or the resistivity of the resistance. Okay, now and the unit of specific resistance SR. अब आप देखो इसके लिए what you have to do, you will keep it as it is in its place. R it will go up to RA और O बराबर कर देना L होता है. So now, if you are looking for this unit, तो unit आप करें listen. Unit of SR is equal to R is what? Resistance. Resistance is what? Ohm. Area means length into length, breadth into breadth, yeah, length into breadth. Centimeters. Now, this is a meter square upon its meter. So 1 meter is cancelled by this. So this is the ohm meter. You can say that. The unit of specific resistance, which is the rho, that is what is that? That is आपका ohm meter आपका आ जाएगा. Now, if the length of conductor is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. 1 meter square. इसका मतलब A is equal to R into 1 meter square upon 1 meter खल्लास rho is equal to अपन क्या हो जाएगा तो rho is directly proportional to the यानी कि specific resistance is directly proportional to the resistance. If you are going to increase it, it will automatically increase. If it is going to be decreased, so it will be decreased. ठीक हो गया इसका मतलब so resistivity is defined as the resistance. So ये जो आपने बोला this is the so resistivity is defined as the resistance of a conductor. ये आपका क्या ठीक है ना सर ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ आपका देखो ठीक है ना ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट जो है जैसा पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट ये हो गया सर conductor of unit है conductor of unit area per unit upon length. जी हाँ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ यूनिट 1 मीटर जो है यूनिट का मतलब 1 एंड पर यूनिट ये जो आपका ऐसे आए ये देखिए पर यूनिट पर यूनिट नहीं हुआ है पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन आप समझ रहे हैं यहाँ 1 मीटर आ गया 1 मीटर स्क्वायर आ गया
क्लियर? अब ये जो अल्टीमेटली दिस वाज व्हाट, दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर आपका क्या होगा 3. तो दिस इक्वेशन शोज व्हाट, अगर आपको कोई बोला व्हाट इट शोज, व्हाट इक्वेशन नंबर 3 शोज, आपको क्या दिखाता है? ये मैंने सही किया है, L अपॉन है, ये मैंने हटाया, देखो आपका ये ठीक है. इज इट क्लियर? देख लीजिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A अपनी जगह में आपका लिखते हैं. अब आपको ये निकालना है, तो ये ऊपर चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम डाउन. इज इट ओके? ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या कर रहा है, ये आपका व्हाट इट शोज अपना, ये क्या दिखा रहा है? resistivity equal to resistance and the formula मीन्स इट शोज दैट कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका देखो ऑफ ए कंडक्टर, अगर ये आपका इंक्रीज कर जाएगा, आपका देखो इंक्रीज करेगा आपका, इसका मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आपका क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा. और अगर ये लेंथ ऑफ कंडक्टर आपकी इंक्रीज करेगी, तो ये आपका क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. इज इट क्लियर? तो ये देख लेना, कई कई किताबों में उल्टा कहीं ना लिख दिया हो, एल ऊपर और ए नीचे, ऐसा भी लिखा कई किताबों लिखा है. लेकिन ये देखो, रो अपनी जगह में, देखो मैथ वाला बच्चा है, रो वी आर नॉट डिस्प्लेसिंग दिस रो, ए विल गो अप एंड एल विल कम डाउन, जिसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं आपका. तो ये दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देख लीजिएगा, कई किताबों में उल्टा भी, यहाँ भी उल्टा ही लिखा हुआ. तो क्लियर है सर? रेसिस्टेंस ठीक है, रेसिस्टेंस में देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करते हैं, हाँ अगर यहाँ की बात करते हैं आपका, ये देखिए, अगर सपोज वी आर मेकिंग, इसको मैं अगर सपोज के लिए क्या बना देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 बना देता हूँ. देखो, एंड इफ आई मेक, अगर तो इक्वेशन नंबर 3 अगर ये होता, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, रेसिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज. यहाँ रेसिस्टिविटी की बात हो रही थी. Are you getting my point? And if the area of cross section of a conductor is increases, so resistance is decrease. यहाँ पे जो बात हो रही है अपना, if the area of cross section is increase, so specific resistivity is increase, and if the length of conductor is increase, so आपका specific resistance is decrease. ये दोनों में आपका देख लीजिएगा. क्लियर सर? थर्ड वाला तो इक्वेशन 2 से भी पता चलता जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं. तो ये जनरली ये होगा. इसके बाद तो जो आपका नाम फैक्टर अफेक्टिंग में आपने ए में आपने क्या पढ़ा, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने पढ़ा. इसी का इफ यू सी द बी पार्ट आपका ना, देखो इसका मतलब the resistance of metallic conductor also depends on temperature. ये हमेशा याद रखिएगा. है. वाला पॉइंट बता दे. तो मेटालिक कंडक्टर का बता दिया था. ओके, लेकिन एक बार आपका नाम, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, नाउ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. इसमें एक चीज और आ जाएगी ना, देख द रेसिस्टेंस ऑफ, ये चैप्टर ऑफ ग्लास में भी शायद बताया हो तो ना देखो. तो द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपका ना देखो, दिस इज कंडक्टर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर किसी भी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका रेसिस्टेंस भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है सर? बट
व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, अब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे देयर इज अ डिक्रीज इन देयर रेसिस्टेंस, उसके रेसिस्टेंस भी आपका क्या होगा, उसमें भी आपका डिक्रीमेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एट अ वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो, सर्टेन आपका मेटल्स लूज देयर रेसिस्टेंस considerably, आपका नाम देखो, which is known as सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी याद रखिएगा। एक पॉइंट आपका और नोट हो गया, आपका नाम देखो दस कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है कि व्हेन एनी मेटल, आपका नाम देखो, आपका नाम दस क्या लिखा हुआ, एट ए वेरी लो टेम्परेचर सर्टेन मेटल्स आपका नाम लूज देयर रेसिस्टेंस। इसका मतलब होगा व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज सो नाउ द कंडक्टर इज आपका ऑल्सो डिक्रीजिंग द रेसिस्टेंस, और जब वो अपना रेसिस्टेंस आपका लूज करेगा लो टेम्परेचर पे, इसका मतलब आपका नाम दैट इज नोन एज आपका सुपर कंडक्टिविटी, आपका नाम देखो। तो ये है सब।